سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات۔ فری عمران خان، یہ نعرہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے 7 براعظموں میں آج گونجا، اور عمران خان کی رہائی کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ریلیز جو ہیں وہ نکالی گئی، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اظہار یکجہتی عمران خان کے ساتھ پاکستان کے علاوہ اوورسیز کمیونٹی اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر سے جمہوریت کو جو لوگ پسند کرتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، چاہے آپ کا پاکستان سے تعلق ہے یا نہیں، وہ لوگ آج سڑکوں پر نکلے۔ کہاں کہاں احتجاج ہوا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر نیو یارک ٹائمز کا مطالبہ ایک اشتہار ہے، اس اشتہار کے اندر کیا تھا یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور عمران خان کی رہائی اور اس رہائی سے جڑی ہوئی ڈیل جو کلیم کیا جا رہا ہے، اس کلیم کے اندر ایک نیا ٹوسٹ ہے۔ پہلے خبریں لگوائی جاتی ہیں، کچھ لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر عمران خان کو ڈیل کی آفرز کروانے کی بات کرتے ہیں، پھر کچھ ثبوتوں کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، اور پھر برطانیہ کو بھی آپ نے گھسیٹ لیا اپنی اس گندی سیاست کے اندر، اور ڈپلومیٹس برطانیہ کے کیا کرتے رہے، کیمروں کی آنکھ دیکھ رہی تھی، یہ سب باتیں ہم نے سنی۔ لیکن اب اس کہانی کے اندر ایک ٹوسٹ آیا، اور ایک اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے ایک صحافی نے ان تمام دعووں کی تردید کر دی۔ تو جناب حکومت کے وزیر کچھ اور کہتے ہیں، اور جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں کچھ اور کہتے ہیں۔ اس میں کتنی صداقت ہے، اور کیا پاکستان کے اندر جھوٹی گواہی دینے کے اس معاملے پر کوئی نااہل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سرکار آپ بھی صادق اور امین نہیں رہے، اور بیان حلفی اگر آپ سے مانا جائے تو کیا آپ یہ بیانی حلفی دے سکیں گے؟ اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ویورز قانونی شہادت کیا کہتا ہے، اور آج ایک اور صحافی نے جو 9ویں کے مقدمات میں گواہان پیش کیے گئے، ان کے نزدیک یہ بہت بڑی گواہیاں ہیں، اور ان کے نزدیک جو ثبوت دیے گئے یہ کافی تھے کسی کو سزا دینے کے حوالے سے۔ پنجاب جو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے اپوزیشن لیڈر کو آپ نے 10 سے 30 سال کی سزا سنا دی۔ پاکستان کی سب سے بڑی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کو آپ نے سزا سنا دی۔ آپ چاہتے کیا ہیں یہ آپ کو بتائیں گے آج کی اس نشست کے اندر، لیکن پھر سب سے اہم خبر ہے، یہ عمران خان کو پیار کرنے والوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے، چاہے آپ گھر کی 4 دیواری میں بیٹھے ہیں یا پھر آپ ایوانوں سے نکل کر سڑکوں پر آ جائیں، آپ کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا، چونکہ آرڈر آف دا ڈے یہی ہے۔ سابق وزیر اعظم جی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سردار عبدالقیوم خان نیازی کو پولیس کی بھاری نفری نے ریلی سے واپسی پر گرفتار کر لیا۔ ان کے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا آئی کہ صدر تحریک انصاف آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ گرفتاری اس نظریے کی ہے جس کی بنیاد پر عمران خان نے قوم کو جگایا، اور نیازی صاحب نے آزاد کشمیر میں اس نظریے کا علم بلند کر رکھا ہے۔ یہ کہانی صرف آپ کو کشمیر کی نہیں ہے، بلکہ جو صوبہ خان صاحب کی جہاں پہ اپنی حکومت ہے وہاں بھی یہ نظریہ ہمیں قید نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو کہا کہ چھوڑ دو اگر تم اس نظریے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور پھر یہ بھی علی امین گنڈا پور کو مخاطب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اگر صوبے کے اندر کوئی فوجی آپریشن ہو رہا ہے اور اس میں عوام کی مرضی شامل نہیں تو کیوں پاکستان کی عوام کو، صوبے کی عوام کو فوج کے سامنے لا کر کھڑا کرتے ہو؟ تمہیں اس کرسی سے ہٹ جانا چاہیے۔ ویورز پورے ملک میں احتجاج اور تیاری ہو رہی ہے۔ لاہور سے بھی خبریں یہ آ رہی تھی کہ جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور پنجاب میں چھاپوں کی سپیڈ تیز ہو گئی ہے، اور اس سپیڈ کے جو رپورٹ ہو رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جو لیڈرشپ تھی جو پہلے سے نظر بند تھی یا پھر آپ کو منظر پہ نظر نہیں آ رہی، یا انہیں سزائیں اور ان کے وارنٹ جاری کر دیے گئے، وہیں پر کارکنان کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں یہ احتجاج شروع ہو چکا ہے، اور پہلی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، عمران خان کی رہائی کے لیے دنیا بھر میں احتجاج، اور تحریک انصاف برمنگھم کے کارکنان کا ایک بڑا قافلہ احتجاج کے لیے لندن جی آ گیا ہے، اور یہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر احتجاج ہوگا۔ برطانیہ پورے سے، ہر بڑے شہر سے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی آپ کو پریزنس نظر آتی ہے، خیر اوورسیز کمیونٹی جہاں بھی ہوگی سارے کا سارا ووٹ عمران خان کا ہے۔ شاید یہ بات نون لیگ کے دوستوں کو پسند نہ آئے، لیکن اوورسیز کمیونٹی اگر ووٹ کسی کا ہے تو وہ عمران خان کا ہے۔ ویورز آپ ان کے اپنے حلقوں میں جا کر مائک لے کر جو لوگ بچے پھر رہے ہوتے ہیں، ولاگرز، ینگسٹرز، جب وہ سوال پوچھتے ہیں نا کہ ہاں سناؤ، تو کہتے ہیں کہ عمران خان سچا تھا۔ عمران خان یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں عمران خان سچا تھا، اور ہمیں اس نے ثابت کیا کہ ہم غلط تھے۔ آج ان کے اپنے حلقوں سے آواز آ رہی ہے، لاہور شہر میں اندرون کے اندر سے یہ آواز لوگ آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، اور سبز پاسپورٹ کی عزت تھی، آج اس پاسپورٹ کی عزت اگر کم ہو رہی ہے تو اس میں پاکستان کی ان طاقتوروں کا ہاتھ ہے، اقتدار میں ان پراکسیز کا ہاتھ ہے جو یہ پورا نظام کسی نہ کسی طرح چلانا چاہتی ہیں، لیکن چل نہیں رہا۔ تیل ڈالتے ہیں، اب تو خیر پانی، پہلے انہوں نے پانی ڈالنے کی کوشش کی، نہیں چلا، اب نے کہا چلو یار تیل ڈال کے دیکھ لیتے ہیں، تیل ڈالا نہیں چلا، پھر خیال آیا کہ چلو دوبارہ پانی ڈالتے ہیں۔ تو اب اس نظام کو چلانے کے لیے یہ کبھی بھاگتے ہیں امریکہ کی سپورٹ مل گئی تو کیا پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی؟ آپ 19% کا ٹیرف اس کے اوپر آپ مان گئے، بھارت نہیں مانا، آپ مان گئے، بھارت اور بھی باتیں نہیں مان رہا لیکن آپ نے مان لیا۔ اس سے پاکستان کی اکانومی کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں جب وہ امریکہ کی مارکیٹ کو ہٹ کرے گی، آپ نے مثال کے طور پہ ایک چیز رکھی ہے جی 100 روپے کی، اس کے اوپر 19% ٹیکس لگ گیا تو وہ 119 کی اپروکسیمیٹلی اتنی اس کی پرائس ہوگی، باقی چیزیں آپ ڈال کر کاسٹ
शिपमेंट, तो वो जो आपकी जो बेसिक कॉस्ट है वो 150 रुपये तक अगर पहुंच गई है, और वही चीज़ आपको दुनिया के उन ममालिक से मिलेगी जहां पर जो कॉस्ट है, जिनका टैरिफ कम है, तो कंपटीशन तो सर शुरू हो गया। तो फिर आप किस लिए अमेरिका से तेल भी ले रहे हैं और बदले में आपका जो टैरिफ है 19% पे स्टैंड करता है। फायदा उन लोगों को हो रहा है जिनके पीछे, जिनको लगता है कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा है। नुकसान पाकिस्तान की इकोनॉमी को होगा, पाकिस्तान के सरमायाकार को हो रहा है, पाकिस्तान के सनतकार को हो रहा है, पाकिस्तान में जो छोटी इंडस्ट्री को धक्का देकर चलाने की कोशिश कर रहा है उन लोगों को हो रहा है जो एक्सपोर्ट्स करते हैं अमेरिका में। लेकिन बदकिस्मती से फैसले ऐसे हो रहे हैं जिसका नुकसान आपके आम बंदे को इनडायरेक्टली या भी नुकसान हो रहा है। और इसके साथ व्यूअर्स मैं आपको ये बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में एहतजाज हुआ। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में तारीखी टाउन हॉल के सामने तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जी। इटली में भी ये एहतजाज हुआ है, वहाँ भी तहरीक इंसाफ ओवरसीज कम्युनिटी, बहुत जाले आपको मिलेंगे वहाँ पे, और खिलाड़ी हैं जी ये लोग भी, ओवरसीज कम्युनिटी पहुंची है जी। और इसके साथ साथ कनाडा में भी एहतजाज हुआ है और इमरान खान की रिहाई के लिए बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ है और ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मुजाहरे में शरीक हो रही है। तो ये अब मोमेंटम बन रहा है, आप इसे रोकने की कोशिश करें। पाकिस्तान के अंदर तो आप कर रहे हैं, लोगों को आप गिरफ्तार भी कर रहे हैं, लेकिन बाहर आप कैसे गिरफ्तार करेंगे? ये मिडिल ईस्ट नहीं है जहां पे आप अपने अरबी दोस्तों को कहकर एहतजाज रिकॉर्ड करने वालों को उठा भी लें, गिरफ्तार भी करवा दें, उनके खिलाफ मुकदमात भी हो जाएं, क्योंकि सजाएं बड़ी सख्त हैं और यहाँ भी एक बादशाही निज़ाम है मिडिल ईस्ट के अंदर। लेकिन बरतानिया में आप किसी को एहतजाज से रोक नहीं सकते। देखें, इस मुल्क में जहाँ पे मैं बैठा हूँ, इनका पाकिस्तान की सियासत से क्या लेना देना? इंटरनेशनली हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हाँ वहाँ पे फ़ायदा नुकसान ज़रूर होता है, लेकिन हर बंदे को अपने अकीदे के तहत ज़िंदगी गुजारने का हक है। आप किस पॉलिटिकल पार्टी से आपकी एफिलिएशन है, आप उसको प्रैक्टिस करें, कोई रोकेगा नहीं। और फिर वो एहतजाज जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, आपको उसकी इजाज़त दे दी जाती है। कोई ये नहीं कहता, बल्कि लोग जब आप चिट्ठी डालते हैं ना कि जनाब हमें 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एहतजाज करना है, तो पुलिस वाले आपसे रब्ता करते हैं, जनाब बिल्कुल वेलकम, कितने लोग आएंगे? फिर आप उन लोगों को जो है वो नंबर्स बताते हैं कि 2000 लोग होंगे, 3000 लोग होंगे, तो उस हिसाब से डिप्लॉयमेंट की जाती है 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, क्योंकि एक मखसूस इलाका आपको दे दिया जाता है एहतजाज करने के लिए, और फिर आसपास जो लोग गुजर रहे होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, और आपके जो आपके मुखालफिन हैं वो आप पे हमला ना करें, पुलिस को डिप्लॉय कर दिया जाता है आपके नंबर्स के एन मुताबिक। तो सर डेमोक्रेसी ऐसे ही पनपती हैं। इस मुल्क के अंदर बहुत सारे वज़ीर-ए-आज़म बदले, एक ही पार्टी के, हुकूमत नहीं गिरी, वज़ीर-ए-आज़म बदल गए, उनके खिलाफ तहरीक इत्तेमाद हुआ, या फिर आप कहें कि पार्टी के अंदर बगावत होगी पॉलिसीज़ की वजह से। किसी को पसंद नापसंद, उसकी शक्ल पसंद नहीं है, वो आपको फ़ायदे पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता, आपके ठेके उसने कितने आपके हल्के में वो आपको देगा, आपके हल्के के लिए पैसा रिलीज़ करता है या नहीं करता, इन बातों पर ये काम नहीं होता। आपका ताल्लुक शाही ख़ानदान से है या नहीं है, आप किसी एक जमात के राइट हैंड हैं नहीं है, साइड किक है नहीं है, इन बातों पे ये फैसले नहीं होते, बल्कि लोगों ने आपको इजाज़त देंगे, आपको फैसिलिटेट करेंगे। एंड दिस इज़ अ डेमोक्रेसी। जिस मुल्क के धर्म रह रहे हैं, हम तो सर नकल ही करते हैं ना, हम बहरूपी हैं, हम डेमोक्रेसी की भी नकल कर रहे हैं, हम निज़ाम हुकूमत यहाँ पर उसकी भी नकल करते हैं। और ये पाकिस्तान में जो बादशाही ख़ानदान आपको नज़र आ रहे हैं, 2-3 ख़ानदान हैं, ये नकल करते हैं मिडिल ईस्ट की बादशाहों के, जहाँ पे ये पड़े रहे कई बरस तक, और फिर इनको ख्याल आया कि यार बादशाह ते असी भी बन सकते हैं। And now they're using the land of pure 1947, वो दिन, वो साल जब पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि हम आज़ादी से ज़िंदगी गुजारें, इसलिए नहीं कि किसी के ग़ुलाम बनकर रहें। इतने हकूक़ तो हमें 1947 से पहले भी दस्तयाब थे जितने आज हमसे इन लोगों ने छीन लिए। अभी मैं आपको ये खबर भी दे दूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जी एक इश्तिहार, और पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स ने इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन की बका की तरफ तवज्जो मबजूल करवाने के लिए अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में जी इश्तिहार दिया है। और तफसीलात में क्या लिखा गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। और ये इश्तिहार हमें पाकिस्तान के हालात बताता है, पाकिस्तान के अंदर आम आदमी के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। और ये कोई फ़लसफ़ा नहीं है। आज जो कुछ इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, और जो जमातें उनका आलाकार बन के, प्रॉक्सीज बनकर ये सब कुछ करवा रही हैं, याद रखिएगा कल को ये आपके साथ भी होगा और आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। पाकिस्तान की आवाम आपका तमाशा देखेगी। और आज हम कहते हैं ना कि इमरान खान 8 फरवरी को तो इनकलाब आया वोट की ताकत से, अगर वो जो पाकिस्तान के अंदर जो पौध है, जो पनीरी शोर की पनीरी तैयार हुई है, अगर वो तमाशा देख सकती है और हम चीखते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए लोगों को निकलना चाहिए, बाहर आना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए वो जेल काट रहा है, अगर वो खामोश बैठे हैं तो आप लोगों का क्या होगा? ज़रा तसव्वुर करके देखें जिन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। सर ये तफसीलात ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और इनको देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा, और आपने ऑनलाइन जाकर भी देखना है। ये स्क्रीन पे साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन चल भी रही है कि असल में ये इश्तिहार था क्या, और इसमें खान साहब के हवाले से क्या बातें जो है वो कही गई हैं। एक तो जी न्यूयॉर्क टाइम्स 2 अगस्त 2025 एक बड़ा इश्तिहार है, और इसमें इमरान खान की सज़ा के हवाले से जो बातें लिखी गई। तफसीलात के मुताबिक 5 अगस्त को इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। इमरान खान को जेल में 731 दिन हो गए हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई थी। आपको याद होगा जुल्फ़ी बुखारी और जो उनका वर्किंग ग्रुप्स है उन्होंने ये बात कही। किस हालत में रखा गया ये भी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान को 22 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है, रखा गया नहीं रखा जाता है, ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने लिख दिया रखा गया, रखा जाता है, और ये मुसलसल कंटिन्यू किया जा रहा है इस पूरे अमल को। उन्हें 8x6 के सेल में रखा गया। इमरान खान को सख्त गर्मी में रखा गया। सेल में बिजली सहूलत मौजूद नहीं होती। इमरान खान को वकला से नहीं मिलने दिया जाता। मुलाकात के वक्त मीडिया ब्लैकआउट होता है। इमरान खान को खाने में जहर देने का भी खदशा है। ये कंसर्न इससे पहले भी शो किया जा चुका है। और आपको याद होगा कि एक फिल्म का हवाला खान साहब ने, जब वो आज़ाद थे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर वो ये बात करते थे कि अगर किसी ने नहीं देखा तो देखें जाकर, नर्स एक फिल्म है जिसमें किस तरह वो अपना टारगेट सेट करती है, लोगों को मारती है, और जो कार्डियक अरेस्ट है वो हुआ, उसको ज़रूर देखें। खदशा जाहिर किया इमरान खान ने, खुद भी उनके ऊपर हमले भी हुए। एक मुलजिम नवीद जो रियासत की तहवील में है और उसे स्टेट प्रोटोकॉल मिलता है, और किस तरह उसकी खातिर मदारत जो है की जा रही है। फिर पाकिस्तान के अंदर अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। फरवरी 8 के इलेक्शन चुराए गए, जुडिशल सिस्टम को मजबूर किया गया, आम शहरियों का मिलिट्री ट्रायल हुआ। ये तमाम चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी। द पाकिस्तान इज अंडर अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ, ये उसकी हेडलाइन है। और फिर इसमें कुछ और लोगों का नाम भी लिखा गया है जो शायद पाकिस्तान में लोगों को पसंद ना आए, लेकिन इट्स एन आई ओपनर। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स का इंतखाब क्यों किया गया? नंबर्स बड़े सिग्निफिकेंट हैं। अगर आप इन नंबर्स को देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स हैज अ लार्ज एंड ग्रोइंग डिजिटल सब्सक्राइबर बेस, रीचिंग नियरली 11.7 मिलियन total subscribers at the end of the first quarter of 2025, including 600K the print subscribers। ठीक है जी, एक तो वो जो आपका प्रिंट है, इसके साथ साथ 11.7 मिलियन आपको ऑनलाइन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मिलेंगे। तो सर ये नंबर बहुत बड़ा है। जब ये इश्तिहार 11.7 मिलियन लोगों तक पहुंचेगा, और इसके साथ साथ तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इसे सब्सक्राइब नहीं करते, वैसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑफिशियल नंबर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इमेजिन करके देखें कि जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर ये इश्तिहार जब लोगों ने देखा होगा, तो पाकिस्तान के बारे में लोगों का क्या ख्याल होगा कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के क्या हालात हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है, इमरान खान जो मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म है उसके साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रहती है। आप और ये भी आपने याद रखना है कि इस स्टोरी को, इस इश्तिहार को एक स्टोरी की शक्ल में ये इश्तिहार हमने प्रिंट देखा है जी अमेरिका में। वो लोग जो एंटी डोनाल्ड ट्रंप हैं, वहाँ पर भी इसको देखा जाएगा, लॉबिंग शुरू हो जाएगी कि देखें डोनाल्ड ट्रंप किसके साथ खड़ा है पाकिस्तान में, इनकी पॉलिसीज़, पाकिस्तान की क़यादत, इस्टेब्लिशमेंट क़यादत के साथ आपको इन लाइन नजर आएंगी। लेकिन ये अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। तो इस तनाज़ुर में भी आपने इस खबर को, इस पर्सपेक्टिव को जो है वो ज़रूर देखना है। व्यूअर्स, मैं आपके साथ ये भी खबर शेयर कर दूँ, और जो खबर कुछ दिनों से आप देख रहे थे पाकिस्तान के मीडिया पर, और इसके अलावा कुछ लोगों ने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि इमरान खान को डील की ऑफर जो करवाई गई। खान साहब मान भी गए, लेकिन बाद में वो मुकर गए, और मुकरना उनकी तरफ से वो क्यों इस पोजीशन में गए, इस पे भी क्लेम आ गया। और लोगों ने यहाँ तक कहा कि खान साहब गल्फ, पहले उन्होंने इकरार किया, बाद में इनकार कर दिया, फिर उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि मुझे बरतानिया या अमेरिका भेज दे। अच्छा, अभी भी क्लेम्स हैं, लेकिन ये क्लेम्स इतने संजीदा नोयत के थे कि फिर बरतानवी डिप्लोमेट्स का जिक्र होता है। बरतानवी हाई कमीशन की 2 दफ़ा मुलाकात का एक क्लेम मौजूद है, और फिर ये भी कहा गया कि हमारे पास एविडेंस हैं। अब एविडेंस क्या हो सकते हैं, ज़रा इसको भी एनालाइज कर लेते हैं। कोई लेटर तो नहीं होगा कि मैं अंदर जा रही हूँ और हम अंदर पहुंच गए, ऐसा तो नहीं होगा। कोई तस्वीरी एविडेंस होगा, कोई इसके साथ साथ कोई वीडियो मौजूद हो सकती है। तो ये एक दावा था। आपने सफारती महाज के ऊपर पाकिस्तान के ताल्लुकात को खतरे में डाल दिया, लेकिन आपको ख्याल बिल्कुल भी नहीं आया। और ये एस्टेब्लिश ही करना चाहते थे कि खान साहब ने देखें जी यू टर्न लिया, डील वो कर रहे थे बरतानिया अमेरिका की, लेकिन यू टर्न ले लिया। फिर उन्होंने गल्फ की बात की, यू टर्न ले लिया। तो ये प्रोपेगेंडा इमरान खान के हवाले से किया जा रहा था। अब अंसार अब्बासी साहब ने जी इसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल उनका आ गया है, और ये जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो सर्कुलेट कर रही थी, इसके ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट जो है, एक खबर की शक्ल में एक रिपोर्ट या तज्जिया, वट एवर यू कॉल इट, उनकी खबरें माजरत के साथ ऐसी ही होती हैं। अंसार अब्बासी साहब का रद्द-ए-अमल, ये हुकूमती एहलकार इमरान खान के मुल्क से बाहर जाने की बात कर रहा है, और डील से मुतल्लिक जिस ख्वाहिश है, इस हवाले से मेरा नाम जिस खबर से जोड़ा गया वो दुरुस्त नहीं। मैंने ऐसी कोई खबर दी ना, कभी कहा इमरान खान को मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिश है या ऐसी कोई डील ऑफर हुई है। अंसार अब्बासी साहब का रद्द-ए-अमल। फिर इमरान खान को बाहर भेजने की ऑफर, कल सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट कर रही थी जिसमें एक हुकूमती नुमाइंदे कहते हैं कि इमरान खान को हमने बाहर भेजने की ऑफर की। इसमें उन्होंने अंसार अब्बासी का तस्करा किया। वो कह रहे हैं जी कि चूंकि जिस वजीर का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है उसने ये क्लेम किया अंसार अब्बासी साहब का नाम लेकर। ये तो अंसार अब्बासी साहब का एक रद्द-ए-अमल था, लेकिन इसके साथ साथ अंसार अब्बासी ने एक और स्टोरी की और किसी और का रद्द-ए-अमल अपनी स्टोरी में उन्होंने शामिल किया, और क्या लिखा कि 9 मई पर कोई रायत नहीं मिलेगी।